All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम बात करने वाले हैं about real user monitoring. So in this particular video, let's talk about RUM, that is real user monitoring. What is real user monitoring and why do you need that and the actual problem statement behind that. So this particular video is actually a production grade video. So with that, let's start with the video. बात करते हैं RUM के बारे में and I want to show you a tool with which you can implement real user monitoring in your application with just few clicks. So with that, let's start with the video. So let's talk about RUM, that is real user monitoring, and I want to showcase a tool that is known as Manage Engine FSO, that is full stack observability tool. तो कैसे हम RUM को implement कर सकते हैं हमारे एक application में. So I have built an application for you जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों को trigger करेंगे and I want to really showcase this particular application to you. Okay. So RUM basically what happens is, let's say you are running an application, तो वो आपका एक front end application हो सकता है, like it can be a JavaScript application, it can be a React application, it can be a Next.js application. So let's say you are running some kind of an application on the user's device. हम server side की बात नहीं कर रहे हैं, हम user side की बात कर रहे हैं. So basically what happens is that users are in, let's say Delhi, they are on 3G या फिर वो एक old browser use कर रहे हैं and for some reasons your application is crashing on the user's side, with which what is really happening is आपकी जो users है वो complain कर रहे हैं that आपका application मेरे browser पे काम नहीं कर रहा है and you have no way to track it. Because अगर कोई error server side पे होगा, you can still check out the logs, you can still see what is really going wrong. But because the problem is happening on the user's device, maybe उनका laptop ही पूरा का पूरा slow है या फिर वो Delhi के अंदर है जिसके कारण उनको latency feel हो रहा है, तो you can't really track these things. You need some kind of an API or you need some kind of a monitoring tool जो user के device के analytics, जो user के device के stats, if something is going wrong can actually send it to your tool. So that is basically what is a RUM. So RUM क्या होता है? It's basically like real user monitoring. तो ये क्या करता है? बीकन API यूज करता है. तो जस्ट इन केस यू डोंट नो, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास एक बीकन API होता है. सो लेट मी जस्ट शो यू दैट. सो इट्स ऑफिशियल API, मतलब आपके जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर के अंदर होता है. सो विद बीकन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली सेंड सम एनालिटिक्स डेटा टू द बैकएंड इन अ नॉन ब्लॉकिंग मैनर. ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू ब्लॉक द मेन लूप ऑफ योर जावास्क्रिप्ट. तो navigator.sendBeacon जैसे टूल्स को यूज करके you can actually send some data like what is happening, if there is any console error, if there is any network call failure. तो वो सब चीज़ें आप बैकएंड पे सेंड कर सकते हो एंड यू कैन यूज टूल समथिंग लाइक Site24/7 कलेक्टर जो इन एनालिटिक्स को कलेक्ट करता है, एग्रीगेट करता है और आपके लिए एक डैशबोर्ड बिल्ड करता है. सो दिस इज बेसिकली अ रियल यूजर मॉनिटरिंग. सो लेट्स से दैट अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, दिस इज अ डमी एप्लीकेशन दैट आई हैव बिल्ट एंड दिस एप्लीकेशन इज एक्चुअली बिल्ट ऑन एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन एंड इसमें मैंने कुछ जो है डमी डेटा वाइप कोड किया है. सो यू कैन सी दैट दिस इज ऑल डमी डेटा. तो यू कैन सी इसमें मैंने कुछ राउट्स बनाए हैं, कुछ स्लो राउट्स हैं, कुछ फास्ट राउट्स हैं. लेट मी जस्ट एक्सपैंड द विंडो. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्लो API है विच बेसिकली डज अ स्लीप ऑफ अ रैंडम सेकेंड्स. देन आई हैव सम फेलियर जो बेसिकली हर बार फेल होता है. आई हैव सम फ्लेकी जो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, राइट. आई हैव सम टाइम आउट्स, आई हैव सम चेकआउट्स. तो मैंने ना कुछ ऐसे डमी एंड पॉइंट्स बनाए एंड आई हैव अ वेरी सिंपल HTML पेज. तो अगर आप ये पेज देखेंगे, दिस इज बेसिकली अ सिमुलेशन ऑफ अ वेब पेज. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मेरे पास अभी कोई भी लॉग्स नहीं है. लेट्स आई वांट टू थ्रो सम एरर, यू कैन थ्रो सम एरर्स. यू कैन टर्न ऑन मेमोरी लीक्स, यू कैन टर्न ऑफ मेमोरी लीक्स. आपने देखा ना कैसे फ्लिकर कर रहा था, बिकॉज मैंने एप्लीकेशन को बहुत अनऑप्टिमाइज कर दिया था. आई कैन ट्रिगर सम राउट चेंजेस, यू कैन सी मैंने राउट चेंज किया. आई कैन डू सम चेकआउट फ्लोज. मैं यहाँ पे कुछ स्लो APIs को कॉल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ फ्लेकी APIs को कॉल कर सकता हूँ, जो हो सकता है 50% ऑफ द टाइम वो चले, 50% ऑफ द टाइम वो ना चले. आई हैव सम कॉन्सोल एरर्स, console.logs. तो ये console.log के अंदर जाके कुछ ना कुछ राइट करेगा. सो यू कैन सी इफ आई ओपन माई console विंडो, सो दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर इज द console. तो ये यू कैन सी दैट console बेसिकली क्या करता है, कुछ वार्निंग्स एंड कुछ एरर्स को ट्रिगर करता है. यू इवन हैव समथिंग लाइक लॉन्ग टास्क, 3 सेकेंड्स का एक ब्लॉकिंग टास्क. यू कैन सी मेरी पूरी वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है बिकॉज दिस हैज़ बीन रनिंग फॉर 3 seconds. बट आई डोंट हैव एनी वे टू ट्रैक दीज थिंग्स. यू कैन सी, लेट मी जस्ट गो बैक टू द पेज. सो यू कैन सी आई डोंट हैव अ वे टू मॉनिटर माई एप्लीकेशन की वॉट इज रियली हैपनिंग. एंड दैट इज वेयर आई वॉन्ट टू एड अ रियल यूजर मॉनिटरिंग टू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं द मैनेज इंजन Site24/7. सो इट्स बेसिकली मैनेज इंजन FSO. And इसके अंदर I have already made an account. So this is basically the account dashboard that you can
see here. Okay, so in manage engine you actually get a lot of things, like for example आप applications को track कर सकते हो. You can see I already have a Node.js server which is being monitored. I have server analytics, I have Kubernetes analytics, I even have the option to self-host this particular thing on a private VPS. I have Docker management, I have AI management. तो बहुत तरह की observability, like because it's a full stack observability platform, so I have like endless things. And इसके अंदर आज जो हम particularly feature की बात करने वाले हैं, that is a web RUM. Okay, so RUM के अंदर हम क्या करेंगे, let's create an application. तो add an application, let's call it as a demo application. Okay, हमें URL चाहिए, तो I'll just copy the URL और इसको हम यहाँ पे URL दे देंगे. Then the threshold is 2000. I'm just going with the defaults. Do I want to track the AJAX calls? Let's set it to yes and scroll down करते हैं. Rest everything seems good. Everything seems good. ठीक है, I'm just going with the defaults. And threshold availability is also good. And यहाँ पे I already have okay, so I need to add a group also, that अगर कुछ problem आती है तो who is on the on call schedule. So यहाँ पर मेरे को एक schedule बना लेते हैं. So let's call it as a demo schedule. Okay, and I'll just call it as demo. And then उसके अंदर we can just give a number. So let's say that ये शुरू होता है 00 and 10 पे, and this basically ends at 1. And then what I can do, I can just click on the okay users. I'll just say admin group and the save. तो हमने एक schedule बनाया. Default profile is good, and let's click on the save. So let's see if I can create a RUM, and just waiting for the application to be saving. तो अभी ये saving mode पे, तो it is basically creating an application for me, a web RUM, real user monitoring application for me. So let's just wait for a while. ऑलराइट, सो यू कैन सी दैट माई रम इज़ नाउ डन, एंड ये है बेसिकली मेरी एक स्क्रिप्ट टैग जिसको मुझे ऐड करना है. सो व्हाट यू कैन सी इज़ दैट हमें क्या करना है, हमें इसको हेडर के अंदर ऐड करना है. तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा. सो हेयर आई हैव दिस डेमो एप्लीकेशन जिसको अभी हम कुछ भी ट्रैक वगैरह नहीं कर रहे हैं. आई ऑलरेडी शोड यू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. इसमें बहुत सारे मॉक APIs हैं. सो इंडेक्स डॉट HTML के अंदर जाके हेड के अंदर आई जस्ट वॉन्ट टू लोड दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, एंड इसके अंदर ऑलरेडी मेरी IDs एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन सेव. ओके, एंड मैं अपने एप्लीकेशन को कर लेता हूँ एक बार रिफ्रेश, सो दैट अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी ओपन डेव टूल्स टू योर रम डैशबोर्ड. सो यू कैन सी इट्स रेडी. एंड अगर हम यहाँ पर वापस चलते हैं तो ये हमने कर दिया है. कस्टमाइज हाउ सेशंस आर ट्रैक्ड, एंड नाउ आई कैन इवन डू अ वेरिफिकेशन. ओके, तो वेरिफिकेशन के लिए मेरे को यहाँ पे URL देना पड़ेगा, दैट इज लोकल होस्ट. आई डोंट थिंक सो इट विल बी एबल टू वेरीफाई बिकॉज ये मेरे लोकल पे चल रहा है. तो ठीक है, एक बार लेट्स गिव इट अ शॉट. बिकॉज ये लोकल है तो आई डोंट थिंक सो. सो एक काम करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को ना थोड़ा सा यूज़ करते हैं. सो आई जस्ट ओपन द नेटवर्क टैब टू सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग. येस, आई कैन सी द स्टैट्स आर गोइंग. तो यहाँ पे ना कुछ एरर्स थ्रो करते हैं, रेलेवेंस एरर्स थ्रो करते हैं, सक्सेसफुल APIs. ठीक है, तो आई एम जस्ट डूइंग सम मॉक टेस्टिंग. मैं इस एप्लीकेशन को थोड़ी बार रिफ्रेश भी करूँगा. सो यू कैन सी बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग माई एप्लीकेशन. थोड़ा ऐड टू कार्ट वाली APIs को कॉल करते हैं, राइट. थोड़ा कॉर्स एरर थ्रो करते हैं. तो यू कैन सी आई एम जस्ट थ्रोइंग सम कॉर्स एरर विच आर नॉट वर्किंग. आई एम थ्रोइंग सम 404 एरर्स, 500 एरर्स, कुछ स्लो APIs को कॉल करते हैं. एंड फिर हम अपने एप्लीकेशन को भी क्या करेंगे, ट्रैक द इवेंट, ट्रैक परचेजेस. लेट मी जस्ट डू वन थिंग. हम क्या करते हैं, कुछ ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट करते हैं. तो हमने अपना एप्लीकेशन ही ब्लॉक कर दिया फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड्स. मेमोरी लीक्स ऑन कर देते हैं, राइट. मेमोरी इज़ ग्रोइंग. मेमोरी लीक्स ऑफ किया. 10,000 टाइम्स हमने देखो कुछ रेंडर किया. सो दिस इज़ बेसिकली वन थिंग. एंड उसके बाद एक और सक्सेसफुल वेरी स्लो APIs को कॉल करते हैं, एंड फिर हम थोड़े एरर्स को भी थ्रो करेंगे, सो दैट सम डेटा इज एक्चुअली कलेक्टेड ऑन द बैक एंड. ओके, सो यू कैन सी हमने कुछ एरर्स थ्रो कर लिए. सो लेट मी जस्ट डू अ रिफ्रेश टू सी इफ आई कैन सी समथिंग, एंड येस आई एम एबल टू सी समथिंग, दैट दिस इज बेसिकली वेयर माई यूजर्स आर कमिंग फ्रॉम. दैट्स रियली ग्रेट. ठीक है, तो ये हमारी समरी है. एंड अभी कोई आउटेजेस तो नहीं है बिकॉज एप्लीकेशन इज परफेक्टली वर्किंग फाइन. यू कैन सी कितने सेशंस बने, एक सेशन बना, दैट इज माई रियल टाइम यूजर मॉनिटरिंग. एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाते हैं जियोग्राफिक आई हैव ऑलरेडी सीन. अगर हम जाते हैं ISP के ऊपर, सो यू कैन सी दैट आई एम ऑन रिलायंस जियो. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. कौन सा ब्राउजर हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं. यू कैन सी एवरी डिटेल अबाउट इट. वेब पेजेस को भी देखते हैं, दैट हमारे ये पर्टिकुलर हमने एक ही वेब पेज के ऊपर अभी काम किया है. थोड़े राउट्स ट्रिगर करते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे ना मेरे पास राउट चेंजेस हैं. देखो मैंने एक राउट चेंज किया. नाउ आई एम ऑन स्लैश चेकआउट, राउट चेंज. आई एम ऑन स्लैश प्रोफाइल, फिर से राउट चेंज करते हैं. आई एम ऑन चेकआउट पेज के ऊपर हम एक काम करते हैं, थोड़े से एसिंक वेट्स एंड वो सब चीज़ें करते हैं. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली माई स्लैश चेकआउट पेज. तो अभी थोड़ी देर में आप यहाँ पर देखोगे दैट चेकआउट पेज के भी जो स्टार्ट्स हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट द वाटरफॉल एनालिसिस. अभी वो रेडी नहीं हुआ है. एंड वेब वाइटल्स. ओके,
So let's talk about the Web Vitals. So let me just see my Web Vitals. So you can see Web Vitals breakdown यहाँ पर आ गया. First input delay, first content fail, paint कब हुआ, right? My applications, my all the information is basically right here. And I even have something known as session replays. अभी वो available नहीं है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा. Session replays मतलब I can even see the recordings of my web pages. And उसके बाद हम एक काम करते हैं, थोड़ा events को देखते हैं. I really like to see the events, okay? Actually this data takes some particular time to actually load. मतलब इतना वो real time में नहीं होता because वो aggregate होती है report. So it will take some time, okay? So अभी हम थोड़ा सा wait करते हैं to get more data. So you can see DNS time, everything is right here. Let me just go back to the web pages. एंड क्या हमारा वेब पेज आया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पूरा का पूरा, सो दैट आई कैन सी द रियल डेटा. नाउ यू कैन सी मोर डेटा इज कमिंग इन. जैसे मैंने रिफ्रेश किया, माय रिस्पॉन्स टाइम इज गोइंग डाउन, ओके दैट्स ऑल्सो गुड. वेब वाइटल्स हैं ये मेरे, ठीक है. सेशन ग्राफ समरी है. तो यू कैन सी दैट एज लॉन्ग एज आई वेट मेरा और डेटा यहाँ पर कलेक्ट होता जा रहा है. सो दिस टेक सम टाइम. एंड अगर आप इस एप्लीकेशन को 2 से 3 दिन यूज़ करोगे, यू विल सी एक्चुअली मोर डेटा, मतलब इसके अंदर और ज़्यादा डेटा एग्रीगेट होगा. सो दिस इज बेसिकली वॉट वी आर टारगेटिंग, ओके. इसके अंदर अगर हम ये चीज़ें भी देखते हैं, दिस ऑल आर वैल्यूज. यू कैन सी दैट यूजर सेशंस, कितने यूजर्स एक्टिव हैं. आई कैन सी 1 यूजर इज एक्टिव. एंड अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यू कैन सी मोर थिंग्स, मतलब व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग. ये थे हमारे सारी एपीआई कॉल्स. यू कैन सी आई कैन इवन सी ऑल द एपीआई कॉल्स. किस एपीआई कॉल ने कितना टाइम लिया. अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्लो एपीआई कॉल इज टेकिंग 5 सेकेंड्स, राइट. 5 सेकेंड्स ले रही है. दिस इज द दीज आर द एपीआई कॉल्स. आई कैन इवन सी उन एपीआई कॉल्स का डीएनएस टाइम कितना है, रिडायरेक्शन टाइम कितना है, कनेक्शन टाइम कितना है. So I can even see all the API calls and I can track slow API calls. Such an amazing thing, right? User sessions के अंदर. So अभी मेरे पास एक ही सेशन है, right? एक ही यूज़र है. अगर मल्टीपल यूजर्स आएंगे तो ऑफकोर्स आई कैन सी मल्टीपल यूजर्स राइट हियर. सेशन रिप्लेस थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है, वो इतने रियल टाइम में नहीं आते हैं. एंड इफ़ वी गो इनटू द रिसोर्सेज एंड एजाक्स कॉल्स, दीज आर ऑल द एजाक्स कॉल्स. तो यू कैन सी फेलियर में अगर हम जाते हैं तो दिस इज द फेलियर वन. एंड उसके बाद हम यहाँ पे फेलियर रेट भी देख सकते हैं, दैट माई फेलियर रेट हैज़ इंक्रीज, राइट. The response time has decreased but failure rate has increased, and this is the slowest API. I can clearly see that. And ये basically slow भी क्यों है, because इसमें सर्वर टाइम ज़्यादा लिया हमने. सर्वर के ऊपर, इफ़ यू रिमेंबर, हमने सर्वर के ऊपर क्या करा था, सेट टाइम आउट लगाया था. तो इट इज़ इवन टेलिंग मी दैट इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ सर्वर साइड. सो really amazing, right? So this is basically your real time user monitoring, real user monitoring. So this इस तरह के जो tools है ना, वो आपको आपके ब्राउज़र के बारे में, आपके जो यूज़र डिवाइस है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दैट आपका एप्लीकेशन किन किन ब्राउजर्स पे चल रहा है, कौन कौन से आईएसपीज पे चल रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या एपीआई कॉल्स कर रहा है, कौन सी एपीआई स्लो है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस. एंड इवन जो आपके कॉन्सोल लॉग्स होते हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आकर एग्रीगेट होती हैं, बट उनमें थोड़ा टाइम लेते हैं, ओके. सो अगर आप इस डैशबोर्ड को, लाइक आई सेड बिफोर, 2 to 3 डेज के लिए छोड़ दोगे, यू विल एक्चुअली सी मच मोर डेटा. एंड इंस्टॉलेशन वॉज जस्ट 1 लाइन. आपको सिर्फ एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी है इन द स्क्रिप्ट टैग, एंड दैट्स इट. Your real user monitoring is now enabled. So that's how the real user monitoring works. So this was all about this particular video. I hope you have learned something new. I hope you got to know about something new. And this is very important in large scale applications. Almost अगर आप कोई भी application open करते हो जिसके पास real users हैं, वहाँ पर this real user monitoring is always there to track down the errors, to track API calls, to track the console logs. So this was all about this particular video, and सभी relevant links आपको नीचे description में मिल जाएंगे. And that was all about this particular video. मिलते हैं हम आपको next video के अंदर. Until then, bye bye and take care.